وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ بہت جلد مہاراشٹر کے کسی مقام پر BRS پارٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر کسان ریلی کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں 10 تا 12 لاکھ کاشتکار شرکت کریں گے۔ تلنگانہ بھون میں مہاراشٹر کے چندر پور ضلع سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور کسان تنظیموں کے قائدین کی BRS میں شمولیت کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی کے قیام کا مقصد ملک میں پائے جانے والے وسائل بالخصوص پانی اور برقی کو ہر شخص تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہر سال بارش کا پانی نصف ضائع ہو جانے کے بعد 70,000 TMC پانی بچ جاتا ہے، لیکن اس پانی کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ اگر اس پانی کو استعمال میں لانے کے لیے بڑے بڑے ڈیمز تعمیر کیے جاتے تو ایسی صورتحال ملک میں پیدا نہیں ہوتی۔ ہر گھر میں نلوں کے ذریعے روزانہ پینے کا پانی سربراہ کیا جا سکتا ہے اور ملک کی ہر 1 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہندوستان میں 83 کروڑ ایکڑ اراضی ہے، جس میں 50% یعنی 41 کروڑ ایکڑ اراضی پر کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس امریکہ جو رقبے میں ہندوستان سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن وہاں کی صرف 19% کاشت کے قابل ہی زمین ہے اور چین کی 16% زمین ہی کاشت کے قابل ہے۔ اس طرح ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ زمین کاشت کے قابل ہے، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کاشت نہیں ہو رہی ہے۔ سیکریٹریٹ کی 5 منزلہ عمارت میں مختلف محکمہ جات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سیکریٹریٹ کی 5 منزلہ عمارت میں مختلف محکمہ جات کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ کے گراؤنڈ فلور پر محکمہ بہبودی درجہ فہرست طبقات، محکمہ اقلیتی بہبود، ریونیو، لیبر، امپلائمنٹ اینڈ لرننگ کو الاٹ کیا گیا ہے، جبکہ پہلی منزل پر محکمہ داخلہ، محکمہ تعلیم، پنچایت راج کو جگہ دی گئی ہے۔ دوسری منزل پر محکمہ صحت و خاندانی بہبود، محکمہ برقی، محکمہ افزائش مویشیاں اور محکمہ فائنانس ہوگا۔ تیسری منزل پر قبائلی بہبود، محکمہ بلدی نظم و نسق، محکمہ منصوبہ بندی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کامرس، زراعت، امداد باہمی، محکمہ آبپاشی، بہبود خواتین و اطفال، محکمہ صنعت و کامرس کو مختص کیا گیا ہے۔ چوتھی منزل پر محکمہ سیاحت و امور نوجوانان، محکمہ بہبودی پسماندہ طبقات، محکمہ ماحولیات و جنگلات، آبپاشی، قانون، سول سپلائز کو جگہ دی گئی ہے۔ پانچویں منزل پر محکمہ ٹرانسپورٹ کے علاوہ نظم و نسق عامہ کے محکمے کو جگہ مختص کی گئی ہے۔ 30 اپریل کو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اس عصری اور جدید طریقوں سے تعمیر کردہ سیکریٹریٹ کی عمارت کا افتتاح انجام دیں گے۔ رائے درگم سے شمس آباد تک میٹرو ریل کے کاموں کے سلسلے میں حیدرآباد میٹرو ریل کے منیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے معائنہ کیا۔ انہوں نے سینئر انجینئرز کے ساتھ راجندر نگر کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سروے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کریش بیریئر اور پتھروں کو ہٹائے بغیر یہ کام انجام دیے جائیں گے۔ ضلع جگتیال میں ایتھنال انڈسٹری کی مخالفت کرنے والے مقامی افراد کی تائید پر کانگریس کے MLC جیون ریڈی کو پولیس نے گھر پر نظر بند کر دیا۔ دھرما پوری میں کانگریس قائد A لکشمن کو پولیس نے احتیاطی طور پر گرفتار کر لیا۔ پاشی گاما گاؤں میں پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کر دیا گیا۔ جیون ریڈی نے ان کو گھر پر نظر بند کرنے پر احتجاج کیا اور پولیس کے رویے پر سوال اٹھائے۔ شہر میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا جاری ہے۔ یاترا کے حصے کے طور پر رامنتا پور سے کاچی گوڑا امبیڈکر مجسمے تک پد یاترا کی گئی۔ سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے قائدین نے اس پد یاترا میں حصہ لیا۔ کانگریس لیڈر وینو گوپال سوامی نے امبیڈکر حلقے کے PCC جنرل سیکرٹری لکشمن یادو کے ساتھ اس یاترا میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ریاست میں آئندہ حکومت کانگریس کی ہوگی۔ ہماچل پردیش کے شملہ میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اندرا گاندھی میڈیکل کالج ہاسپٹل میں پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ شہر میں حالیہ دنوں کے دوران ہوئی بارش کے نتیجے میں سڑکوں کو نقصان پہنچا۔
शहर की सड़कों पर कई मकामात पर गड्ढे पड़ गए, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई मकामात पर दरख्त भी गिर गए हैं। तूफानी हवाओं के नतीजे में बरक़ी पोल्स भी उखड़ गए, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत में मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। दिन में दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ शाम में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 3 से 4 दिनों में रियासत में इसी तरह की सूरत हाल के बरकरार रहने का इम्कान है। रियासत में बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला निजामाबाद में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के काम अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली। बिल्स की रकम की अदम वसूली पर विजय नामी कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली। विजय बिल्स की रकम के लिए एई से इसरार कर रहा था, ताहम अहदेदारों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिस पर इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इसने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इस वाक़े के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। ये वाक़या ज़िले के केलाड़ी गांव में पेश आया। अत्तापुर में वाक़े तारीख़ी मुश्क महल में ख़जाने की मौजूदगी की अफवाह के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट के मकसद से चाशुंबे को नौजवानों का एक ग्रुप इस मुश्क महल कॉम्प्लेक्स पहुंचा। इसमें से एक नौजवान का पैर इत्तेफाकी तौर पर स्लैब के पत्थर पर पड़ गया, जिसके साथ ही इसमें से एक सांप निकल पड़ा। सांप को देखते ही वो महफूज मुकाम पर चला गया। बाद अज़ां इन नौजवानों को पत्थर के पीछे एक बड़ी गार नजर आई। इन नौजवानों ने फौरी तौर पर मुकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद अवाम की बड़ी तादाद मुश्क महल के करीब पहुँच गई, जिन्होंने वहाँ पर सांप को देखा। जल्द ही मुकामी मीडिया में इस बात की अफवाहें गश्त करने लगी कि यह सांप खुफिया ख़जाने की निगरानी कर रहा है। एक मुकामी शख्स ने मीडिया को बताया कि हुक्काम से नौजवानों ने कहा कि इस इमारत में सुरंग हो सकती है। मुकामी अफराद डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज के ज़िम्मेदारों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि यहाँ सर्वे करते हुए इसकी तलाश का काम किया जा सके। मुकामी अफराद ने मुश्क महल के वसी इलाके में सांपों और दीगर जानवरों के पाए जाने की शिकायत की। ये इमारत 17वीं सदी की है। शहर के नवाही इलाके बाटा सिंगारम की मार्केट में आम की आमद में इजाफा हो गया है। इस मार्केट में रोज़ाना 800 से ज़ायद आम की लारियां लाई जा रही हैं। पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बेशतर अजला से आम की बड़ी तादाद यहां पर लाई जा रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान गैर मौसमी बारिश और तूफ़ानी हवाओं के नतीजे में आम की फसलों को नुकसान पहुँचा है। मौजूदा तौर पर एक टन आम की कीमत 25,000 रुपये ता 40,000 रुपये के दरमियान दर्ज की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता साल एक टन आम की कीमत 60,000 रुपये ता 1 लाख रुपये के दरमियान दर्ज की गई थी। मार्केट के अहदेदारों ने कहा कि जारिया साल जून तक आम का सीज़न रहेगा। घोड़े को बचाने की कोशिश में गर्क होने वाले वर्कर की जान बचाने के दौरान एक और नौजवान भी मूसा नदी में गर्क हो गया। इस वाक़े में 2 नौजवान और घोड़ा मूसा नदी में गर्क हो गए। ये वाक़या कल शाम राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ किस्मतपुर में पेश आया। पुलिस और मुकामी ज़राए के मुताबिक किशन बाग से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल मोहम्मद सैफ, जो कि घुड़सवार बताए गए हैं, अपने घोड़े और वर्कर 19 साल आशू सिंह मुतवत्तिन राजस्थान के साथ किस्मतपुर पहुँचे। वो वहाँ घुड़सवारी कर रहे थे। इसी दौरान आशू सिंह घोड़े को पानी पिलाने के लिए मूसा नदी के पास पहुँचा, जहाँ घोड़ा बेकाबू होकर पानी में चला गया। आशू सिंह ने इसे बचाने की कोशिश की, ताहम वो भी पानी में गिर पड़ा और गर्क हो रहा था। इसी दौरान मोहम्मद सैफ उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचे और नदी में छलांग लगा दी। वर्कर को बचाने की कोशिश में वो भी पानी में गर्क हो गए। दिल्ली के जंतर मंतर के करीब चौथे दिन रेसलर्स का एहतजाज जारी है। उन्होंने उनके साथ इंसाफ करने तक एहतजाज को जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह ब्रिज भूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। धरने के कैंप में रेसलर्स ने फिटनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कलेक्टर के कत्ल में सजा काटने वाले आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर बिहार हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में साफियों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की सरबराही वाली बिहार हुकूमत पर जेल के खवानीन में तरमीम करते हुए मुलजिम को रिहा करने पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि बिहार हुकूमत का ये फैसला जी कृष्णैया गोपालगंज कलेक्टर का दूसरा कत्ल है। उन्होंने बिहार के IAS अफसरान की एसोसिएशन के खामोशी इख्तियार करने पर अफसोस का इजहार भी किया। MP हैदराबाद ने कहा कि आनंद को सियासी फायदे के लिए रिहा किया गया है। CM बिहार नीतीश कुमार को निशाना तनकीद बनाते हुए ओवैसी ने कहा कि वो अपोजिशन को मुतहद करने के नाम पर मुल्क भर का दौरा कर रहे हैं, खुद को PM के ओहदे का उम्मीदवार बता रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो पूरे मुल्क को यही पैगाम दे रहे हैं। AIMIM सदर ने छत्तीसगढ़ में हिफाजती दस्ते पर हुए हमलों को अफसोसनाक करार दिया और मुल्क में हो रहे दहशतगर्दाना हमलों के लिए मरकज में बरसर इक़्तिदार BJP हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय कुमार ने कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रियासत कर्नाटक में 10 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। BJP और कांग्रेस समेत दीगर जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है। करीमनगर के MP बंडी संजय कुमार भी BJP की कामयाबी के लिए वहां इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने बागीपल्ली असेंबली हलके में BJP के उम्मीदवार मुनी राजू के साथ एक रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की तादाद में पार्टी कारकुनान, पार्टी के हामियों और अवाम ने शिरकत की। करीमनगर रुकने पार्लिमान बंडी संजय कुमार ने अवाम से BJP उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कायदीन रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK शिवा कुमार पर मुश्तमिल वफ्द ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि अमित शाह ने फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाली तकरीर की है। उन्होंने इश्तियाल अंगेज तबसरे और अपोजिशन की तौहीन की है। कांग्रेसी वफ्द ने अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पुलिस एहलकारों से मुतालबा किया। आपको याद दिला दें कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाते हुए कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो फिरका वाराना फसाद होंगे, कई इलाकों में तशद्दुद का इम्कान है, लिहाजा कांग्रेस को वोट न डालें। हुकूमत हिंद के ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से इनखला किए गए 128 हिंदुस्तानी शहरी बहिफाजत सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सूडान में जारी खाना जंगी के दरमियान वहां फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जा रहा है। ये शहरी सूडान से सऊदी अरब के रास्ते हिंदुस्तान आ रहे हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा मुरलीधरन ने बताया कि मजीद 128 हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे C-130J के जरिए जिद्दा पहुंचे हैं। उन्होंने जिद्दा में उन शहरियों का इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर के मुताबिक जिद्दा पहुंचने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान रवाना करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक कुल 1100 शहरियों का इनखला किया गया है। याद रहे कि सूडान में तकरीबन 3000 हिंदुस्तानी हैं जिन्हें वतन वापस लाने के इक़दाम जारी हैं। सूडान के सदर मुकाम खर्तूम में कई मकामात पर शदीद लड़ाई के सबब वहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर गैर मुस्तहकम बनी हुई है। पिछले 10 दिनों के दौरान फौज और नीम फौजी ग्रुपों के दरमियान होने वाली लड़ाई में 400 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने महकमा आबरासानी के MD से मुलाकात करते हुए हल्के के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर MLA जाफर हुसैन मेराज ने वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से मुलाकात की और उन्हें हल्के में वाटर लाइन और सीवरेज लाइन के ज़ेर इल्तिवा कामों से वाकिफ करवाया। मौसम बरसात के आगाज से कबल इन कामों को मुकम्मल करने पर भी जोर दिया गया। इजलास में नामपल्ली हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर कायदीन, साबिक कॉरपोरेटर्स व दीगर ने भी शिरकत की। जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए इजलास से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। तेलुगुनाडु स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनान ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर का मुहासरा करते हुए मौसम गर्मा में भी
समर क्लासेस के नाम पर तलबा को हरासा करने वाले कॉरपोरेट कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। TNSF के रियासती सदर पुरला पुली रविंदर की क़यादत में एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत के कई खानगी कॉलेजेस में तातीलात के बावजूद तलबा को समर क्लासेस के नाम पर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के क़वानीन के खिलाफ काम करने वाले कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। पुलिस ने एहतजाजी कायदीन को हिरासत में लेकर एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से राहुल गांधी की नाअहली के खिलाफ पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सत्याग्रह दीक्षा की गई। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के ज़ेर एहतमाम ये दीक्षा की गई थी। इस एहतजाजी प्रोग्राम में MP मीनाक्षी नटराजन, PCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, साबिक कारगुजार सदर V हनुमंतराव, साबिक MLA कोदंडा रेड्डी के अलावा PCC तादेबी कमेटी के चेयरमैन चिन्ना रेड्डी व दीगर ने शिरकत की थी। कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने इस मौके पर कहा कि राहुल गांधी ने जब अपनी सरकारी रिहाइशगाह को छोड़ा तो मुल्क के लोगों ने आंसू बहाए। मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी खानदान की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क बीजेपी के तरीक़ेकार को देख रहा है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के रियासती सदर ने भी इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी मुख्तलिफ तरीकों से परेशान कर रही है क्योंकि वो राहुल गांधी से खौफजदा है और इसीलिए उनकी रुकनीत मनसूख कर दी गई है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर सवाल करने वालों के साथ मुतासिबाना सलूक करने का इल्जाम लगाया है। हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम भागीरथा महर्षि जयंती तकरीबात का एहतमाम किया गया। BC वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने जयंती तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गंगुला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना ने BC की फलाह व बहबूद में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। रियासती वजीर ने बताया कि BC आत्मा गौरव भवन की रियासत भर में तामीर की जा रही है। हुकूमत ने कोकापेट में 2 एकड़ अराजी भी इमारत की तामीर के लिए मख्तस की है और 2 करोड़ के फंड्स भी खर्च किए गए हैं। BC वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जे श्रीनिवास गौड़, सागरा संगम के सदर शेखर, BC वेलफेयर महकमे के अफसरान, BC एसोसिएशन के कायदीन व दीगर ने जयंती तकरीबात में शिरकत की। जिला नलगुंडा में जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों ने उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली। पंचायत सेक्रेटरियों की मुद्दतकार 3 साल से जायद होने के बावजूद उन्हें रेगुलराइज न किए जाने पर वो तशवीश में मुब्तला है। नलगुंडा के NG कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करते हुए सेक्रेटरीज ने कहा कि CM KCR के उन्हें रेगुलराइज करने के वादे को 1 साल गुजर गया है, लेकिन CM के वादे के मुताबिक उन्हें अब तक रेगुलराइज नहीं किया गया है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए बताया कि रियासत में 9000 से जायद जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज रेगुलराइजेशन के मुंतज़िर हैं, जबकि जिला नलगुंडा में 750 पंचायत जूनियर सेक्रेटरीज मुस्तकिल मुलाजिमत के अहल हैं। एहतजाजियों ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने पर तनख्वाहों समेत TADA अलाउंस में इजाफे की उम्मीद जताई है और रियासती हुकूमत से उन्हें से किए गए वादे के मुताबिक रेगुलराइज करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद शहर के इलाके बेगमपेट में एक CRPF कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारते हुए खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की सुबह सिकंदराबाद के बेगमपेट के चिकोटी गार्डन में पेश आया है। कांस्टेबल की शिनाख्त देविंदर के तौर पर की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और यहाँ CRPF IG महेश चंद्रा लड्डा के मातहत काम करता था। शुबा है कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से CRPF के जवान ने ये खुदकुशी की है। मुताल्लिका पुलिस ने नाश को गांधी अस्पताल पहुंचाकर मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ हो गई है। संगारेड्डी जिले में एक पोस्ट ग्रेजुएट की तालिबा के फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 25 साल तेजस्वी PG की तालिबा थी और वो नफ्सियात की पढ़ाई कर रही थी। बताया गया है कि वो 2 रोज कबल अन्नावरम गई थी और वहां से लौटने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर ये इंतहाई इक़दाम किया। वालिद श्रीनिवास राजू ने बताया कि तेजस्वी नफ्सियात की तालीम हासिल कर रही थी और उसने अपनी मर्जी से ये इक़दाम नहीं किया है। BDL भंवर पुलिस ने इस वाक़े की इतला मिलने पर वहां पहुंचकर
तफसीलात इकट्ठा की है और एक मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 57,000 से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि एक दिन में 9,355 केसेस और 26 अमवात दर्ज की गई हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 57,410 रिकॉर्ड हुई है। 26 अमवात के सबब मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,31,424 हो गई है। यौमिया मुस्बत शरह 4.08%, हफ्तावार मुस्बत शरह 5.36% रही है। 24 घंटों में 12,932 लोग सेहत याब हुए हैं। बहाली की शरह 98.6% है। इस अरसे में यानी एक दिन में 2,29,175 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 4,358 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ मुल्क में कोविड वैक्सीन लगाने वालों की तादाद 220,66,54,444 हो गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।